Let's cut across to breaking news that's coming in this afternoon. All right, these are the latest images that we're getting to you right now. This is Shraddha Walkar's father, who is making his way into the venue. He's going to be briefing the press shortly. This comes after he met with Deputy Chief Minister Devendra Fadnavis. We've been getting you every update on the investigation, the latest being that Aftab's judicial custody has been extended. Vikas Walkar, you see on your screens, they're making his way in. He's been interacting regularly with the media on the phone, but this is the first time that he's actually addressing a press conference. He was the one who alerted cops that his daughter was missing after Shraddha's friends had reached out to him saying something was amiss. He had also met Aftab several times, and that's why his particular statement and his version of events is extremely crucial in this case. Shraddha's father had just about an hour ago met with Deputy Chief Minister Devendra Fadnavis as well. He's been putting forth demands saying that there must be strictest action against Aftab, that he must be given the death sentence for what he did to his daughter. Vikas Walkar's DNA samples have also been collected by the Delhi police to identify and ascertain all of the body parts that they've recovered so far, which they believe to be Shraddha's, and that they're confirming using Vikas Walkar's DNA samples currently. So Vikas Walkar expected to give details to the media, not just about what he thinks of this case, what happened to his daughter, but also about his meeting with Deputy Chief Minister Devendra Fadnavis. There's been, remember, a political blame game as well, because questions have been asked of the previous Mahavikas Aghadi over why the Maharashtra police had taken so long to act on a complaint that was filed by Vikas Walkar. It took, of course, the Delhi police's intervention much later after they were formally roped in for action to be taken. But years ago, there was also a letter that was written by Shraddha saying she was scared Aftab would actually kill her, and despite that, the cops didn't act in Maharashtra. Shraddha's father, they're getting set to brief the media about his meeting with Deputy Chief Minister Devendra Fadnavis. There have been several political leaders who have been reaching out and meeting with Vikas Walkar, expressing their condolences and their shock over what happened to his daughter. And he's going to speak out now about what his demands are, what he believes as far as the investigation is concerned. So far in his conversations with us, he's always maintained that he's been satisfied with the probe being conducted by the Delhi police and was absolutely shocked, as was the rest of the country, over what happened to Shraddha Walkar. Shri Vikas Walkar Shraddha के पिताजी हैं, उनके साथ में उनके रिश्तेदार, मुझे नातेवाईक आणि मित्र उपस्थित आहेत. राजल नाईक, मिस्टर गोन्साल्विस आहेत. आता आम्ही आपल्या सगळ्यांना माहित आहे की वाळकर जी वसई में रहते हैं, वसई पारनाका गांव में. मैं वाळकर जी ही आज पत्रकार परिषद लेने वाले हैं. मैं उन्हीं से प्रार्थना करूंगा की त्यांनी आपल्याला संबोधित करावं. मैं एक ही जो लैंग्वेज में कंफर्टेबल है, प्लीज प्लीज मैं एक ही रिक्वेस्ट करना, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड. अ फादर हैज कम आउट फर्स्ट टाइम, ही वांट टू स्पीक समथिंग. वो समाज से बात करना चाहते हैं, तो हम मेरी प्रेस होती है, आप जो भी मुझे पूछते ये बात कभी, बट प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड. और त्यांना ज्या भाषेत कम्फर्ट असेल वो भाषा में पहले बोलने दो, फिर आपको दो भाषा में ज्या प्रश्न विचारतात माहिती हवी असेल द्या. मी एकच विनंती करतोय, प्लीज ट्राय टू अंडरस्टँड. कांता परिवार और पिताजी की स्थिति समझे. धन्यवाद. ठेवून द्या ना. ये पंखे बंद करा.
नमस्कार. आपणा सर्वांचे आभार जमल्याबद्दल. मी विकास वालकर. मैं विकास वालकर, माझी मुलगी श्रद्धा का श्रद्धा पिता, वालकर हिच्या दुर्दैवी मेरी बेटी मृत्यू संदर्भात मी श्रद्धा आपणासमोर वालकर, माझे मनोगत व्यक्त करणार जिसकी आहे. मृत्यु हुई है, जिसका खून किया गया है, सर्वप्रथम उसके बारे में मैं वार्तालाप करने दिल्ली यहाँ पर आया गव्हर्नर हूँ. माननीय श्री बैजल जी व सबसे साउथ पहले दिल्ली दिल्ली के DCP गवर्नर बैजल जी यांनी मला दिल्लीमध्ये भेटून आश्वासन दिले आहे की तुम्हाला न्याय मिळवून उन्होंने देणार मुझे आहे. दिल्ली में मिलकर आश्वासन दिया है. तसेच माननीय DCM जैसे ही साहेब श्री माननीय देवेंद्र डिप्टी फडणवीस चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस, यांनी मला उन्होंने भी आश्वासन दिले आहे. मुझे त्याबद्दल आश्वासन दिया त्यांचे है धन्यवाद. और उसके लिए उनका धन्यवाद. तसेच डॉक्टर नीलमताई गोरे डॉक्टर नीलम गोरे व आमदार श्री किरीट सोमय्याजी यांनी माझ्या घरी और येऊन भाजपा के नेता किरीट सोमैया माझी जी, चौकशी इन्होंने मेरे केल्याबद्दल घर पे आकर त्यांचेही मेरे मनापासून घर पर धन्यवाद. आकर मुझसे बातचीत की, इसीलिए उनका भी खास धन्यवाद. करून आमदार किरीट सोमय्याजी यांनी मला आतापर्यंत दिल्ली येथे किरीट सोमैया जी ने जाण्या येण्यासाठी विमान खर्च मेरा व दिल्ली खाण्यापिणे जाने आने का खर्च, तसेच खाने राहण्याची पीने का व्यवस्था खर्च, करून रहने की एयरपोर्ट व्यवस्था करके ट्रांसफर दी थी. या एयरपोर्ट से सर्वांची आना जाना सोय केल्याबद्दल तसेच त्यांची और इन स्वतःची सारी गाडीची चीजों के लिए व्यवस्था मेरी करून मदद करने के दिल्याबद्दल लिए, त्यांचे मनपूर्वक गाड़ी की व्यवस्था करने के लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ. माझी मुलगी श्रद्धा वालकर हिचा दुर्दैवी मृत्यू झाला मेरी असून बेटी श्रद्धा त्याचे वालकर मला जिसकी व मृत्यु माझ्या हुई है, कुटुंबियांना अत्यंत दुःख झाले आहे व और ते इस वजह आम्ही से कधीच मुझे और मेरे परिवार विसरू को शकणार अत्यंत नाही. दुख हुआ है. व त्यामुळे माझी प्रकृती थोडी खराब झाली असून और ये मी शक्य हादसे के होईल बाद तेवढे मेरी जो प्रकृति तुमच्याशी थी, मेरी बोलणार तबियत थी, आहे. वो खराब हो गई. और इसी बारे में मैं आपसे बात करने आया आतापर्यंत हूं. झालेल्या तपासाबद्दल अब तक जो भी इन्वेस्टिगेशन हुई है, दिल्ली पोलीस व वसई पोलीस यांचे काम दिल्ली संयुक्तपणे पुलिस, वसई पुलिस, व्यवस्थित चालले असून अगदी इन दोनों का ही सुरुवातीस काम अच्छे से चल रहा है, ठीक से चल वसई रहा है. येथील तोळींज पोलीस स्टेशन व वसई माणिकपूर पोलीस स्टेशन यांच्या काही असहकार्याच्या भूमिकेमुळे मला बराच त्रास सहन करावा लागला. वसई पुलिस त्याबद्दल के चौकशी व्हावी. असहकार्य की वजह से कारण मुझे जर बहुत तसे तकलीफ झाले हुई नसते शुरुआत में. तर आज माझी मुलगी जिवंत असती किंवा काही अगर पुरावे उन्होंने मिळण्यास मदत झाली असती. एक्शन नहीं होती तो मेरी बेटी शायद आज जिंदा होती. मला माझ्या बहुत से मुलीसाठी न्याय एविडेंस मिळावा नष्ट कर दिए गए. यासाठी आपल्या सर्वांचे सहकार्य तसेच न्याय व्यवस्थेवर मेरी बेटी को न्याय माझा मिले, संपूर्ण इसलिए आप विश्वास सबका आहे व आहे. सहायता चाहिए. आफताब पुनावाला याने माझ्या मुलीची आपका अत्यंत पूनावाला, क्रूरतेने हत्या केली असून त्याला उसने मेरी कठोरात बेटी की कठोर बहुत शिक्षा क्रूरता व्हावी से हत्या की है व त्याच्या कुटुंबातील और उससे कठोर से त्याचे कठोर आई-वडील शिक्षा, व कठोर से भाऊ कठोर सजा दी यांचीही जानी सखोल चाहिए. चौकशी करून त्यांना जास्तीत और जास्त उसके माता पिता, उसका शिक्षा भाई, झाली इनकी पाहिजे. भी इन्वेस्टिगेशन की जानी तसेच चाहिए या और इनका गटामध्ये रोल भी इतर अगर कोणी सामने सामील आता है असतील तो उन्हें भी तर सजा दी त्यांची जानी चौकशी चाहिए. करून त्यांनाही शिक्षा व्हावी अशी मी अपेक्षा करतो. धन्यवाद. My request is for justice to be done. दोन-चार वाक्य हिंदीत बोलता आले तर बघ, आले तर. खत्म हो गया माझे काही प्रश्न आहेत. तुम्हाला हे प्रश्न करायचे ना, मी सरकारनं प्रश्न केला की हे सगळे नियम लागू झाले. जी 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 जरूर जरूर. काही नियम सरकारने लावले जेणेकरून इतर पिढीच्या माझे काही प्रश्न असून
ते असे आहेत की My questions are such. 18 वर्षानंतर जे व्यक्ती स्वातंत्र्य दिले जाते त्यावर विचार व्हायला हवा. तसेच The freedom काही that is given ॲपवर after विचार 18 करून years of age should be looked at again. धर्मजागृती होण्यावर भर दिला गेला पाहिजे. There should be more awareness around religion and communally sensitive issues. तसेच माझ्या मुलीचे My daughter, what happened to her was extremely saddening. यापुढे Beyond this, कोणाचेही होऊ नये no, अशी nothing like this should माझी ever happen अपेक्षा to आहे. another person. That's what I hope. नंतर प्रश्नांमध्ये प्रश्नांमध्ये 2-4 तुम्हाला जे बोलायचं ते हरकत नाही. कुणाला प्रश्न विचारायचे? ते थोड्या वेळाने सगळं याच्यापुढे हिंदी नमस्कार. आप सभी का धन्यवाद करता हूं. मैं विकास वालकर, मेरी बेटी श्रद्धा वालकर, इसकी दुर्दैवी मृत्यु होने से मैं कुछ कहना चाहता हूं. मैं दिल्ली गवर्नर श्री माननीय बैजल जी व साउथ दिल्ली डीसीपी इन्होंने मुझे दिल्ली में मिलकर आश्वासन दिया है कि हम आपको न्याय दिलाएंगे. वैसे ही अभी आने से पहले मैं श्री देवेंद्र जी फडणवीस इनसे भी मिलके आया हूँ. उन्होंने भी मुझे आश्वासन दिया है कि आपको न्याय दिलाऊंगा. और श्री किरीट सोमैया जी इन्होंने मेरे घर पर आकर मुझे मिलकर मुझे आश्वासन दिया है. उनका भी मैं धन्यवाद करता हूं. खास करके उन्होंने मुझे दिल्ली जाने के लिए बहुत कुछ मदद की है. खास करके फ्लाइट की आने जाने की सुविधा, वैसे ही रहने की खाने पीने की सुविधा और उनकी खुद की गाड़ी देकर मुझे जो सहकार्य किया है उसके लिए मैं उनका
धन्यवाद करता हूं। मेरी बेटी श्रद्धा वालकर, उसकी मृत्यु होने से मुझे दुख हुआ है। वैसे ही मेरे परिवार वालों के भी बहुत दुख हुआ है। उस वजह से मेरी सेहत भी खराब हो चुकी थी, इसलिए मैं आपके सामने आ नहीं पाया। उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं। आज तक जो इन्वेस्टिगेशन दिल्ली पुलिस और वसई पुलिस, उनका कंबाइंड इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, वो सही तरीके से चल रहा है। फिर भी वसई पुलिस व नालासोपारा पुलिस, तुळींज पुलिस ठाणे, इन्होंने इन्वेस्टिगेशन में थोड़ी सी दिरंगाई की। उस वजह से मुझे जो तकलीफ हुई उसका मुझे अफसोस लग रहा है। उस वजह से मेरी बेटी शायद आज जिंदा होती थी, या कुछ प्रूफ मिलने में मुझे ज़्यादा मदद मिलती थी। मुझे मेरी बेटी को जस्टिस मिलने के लिए आप जो हेल्प कर रहे हैं, वैसे ही मिलता रहेगा, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूं। आफ्ताब पूनावाला ने मेरी बेटी का जिस तरह से मर्डर किया है, उस वजह से उसको, जैसे मेरे बेटी का कत्ल हुआ है, वैसे ही उसको भी शिक्षा होने की मैं अपेक्षा करता हूं। उसी तरह उसके घर वाले, उसके माँ बाप या उसके भाई, उन सब की जांच होनी चाहिए। उस तरह इस मामले में जो भी कोई शामिल हो, उसकी भी जांच होनी चाहिए। धन्यवाद। शेवटच्या आपण योग्य वेळेला मला प्रश्न विचारतो.
बस इस मामले में सही इन्वेस्टिगेशन हो और उसे फांसी की सजा होनी चाहिए, ये मैं चाहता हूँ। सर, आपने सवाल उठाया था कि जो 18 वर्ष के हो जाते हैं उनको लेकर रिलीजियस जानकारी दी जानी चाहिए। अपने मराठी में जब अपने कुछ सवाल उठाए थे उसको हिंदी में प्लीज। अच्छा, व्यक्ति स्वतंत्रला काही हिंदीमध्ये शब्द यहाँ व्यक्ति स्वतंत्र बोलो, हिंदी में व्यक्ति स्वतंत्र ही है। 18 साल के बाद जो व्यक्ति स्वातंत्र्य दिया जाता है उसके ऊपर विचार विनिमय होना चाहिए, क्योंकि उस वजह से ही मुझे ज़्यादा तकलीफ हुई। वैसे ही कुछ मोबाइल ऐप की वजह से जो दिक्कत हो रही है उसके ऊपर भी कुछ बंधन होने चाहिए। ठीक है सर, क्या आप ये कह रहे हैं कि 18 साल की उम्र के जो बच्चे हो जाते हैं, 18 साल से ज्यादा उन्हें धर्म को लेकर जानकारी दी जानी चाहिए, उन्हें धार्मिक जानकारियां भी होनी चाहिए, नगर की घटना हो सकती है। धर्म को लेकर धर्म जागृति बोला है मैंने। जी, वही हिंदी में एक कंप्लीट लाइन बता दीजिए कि 18 साल के मेरा मतलब था इसके ऊपर काउंसलिंग होनी चाहिए। जो 18 साल के ऊपर के बच्चे होते हैं उनके ऊपर कंट्रोल होना चाहिए, वो नहीं हो रहा है। क्योंकि जब मेरे बेटी ने मुझे मेरे घर छोड़ने से पहले जो बोला था कि मैं अभी बालिग हो गई हूँ, तो मैं कुछ नहीं कर पाया उस तक, तो उसके लिए मुझे ऐसा कहना पड़ा। सर, आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप जो आपके पेरेंट्स थे वो इन सारी चीजों में कहीं ना कहीं उनको जानकारी थी, हत्याकांड में शामिल है कि नहीं शामिल हो दूसरी बात है, लेकिन जिस तरह से टॉर्चर किया जा रहा था, जो लेटर सामने आया था, जो पुलिस स्टेशन में पहले ही दिया गया था, बाद में उसी तरह का पूरा एक क्राइम सीक्वेंस भी सामने आया, तो क्या लगता है कि उनके पेरेंट्स कहीं ना कहीं अपने बेटे को सेव करके चल रहे थे, बचाने की कोशिश करते थे, इस वजह से जाकर इतनी बड़ी घटना भविष्य में जाकर हुई? जी बराबर, उनको इस मामले में सब जानकारी थी, लेकिन मुझे कुछ बताया नहीं गया जो मुझे लगता है कि बताना चाहिए था, तो उसकी जांच तो होनी ही चाहिए। जब आपने उसकी पहली कंप्लेंट पुलिस थाने में जब आई थी, उस कंप्लेंट में भी उसने बहुत सी चीजें पुलिस को बताई, तो क्या उसके घर वापसी के सभी दरवाजे बंद थे? वो घर क्यों नहीं वापस आ पा रही थी? ये इतनी तकलीफ अगर उसे हो रही थी तो फिर वो पुलिस को जो तकलीफ बता रही थी वो घर वालों को क्यों नहीं बता रही थी? क्या ऐसा हुआ था कि वो घर वापस नहीं आ पाई? मुझे ढूंढना है कि वो क्यों इतना प्रेशर आया कि वो कह नहीं पाई, वही ढूंढना। बीते 2 सालों में क्या आपने कभी कोशिश की श्रद्धा के बारे में जानकारी लेने की या उससे बात करने की? जी मैंने कोशिश तो की, लेकिन मुझे ज्यादा जवाब नहीं देती थी। एक सवाल है, जब आप कंप्लेंट करने गए थे, जब आप पोलिसांनी पोलीस स्टेशनला गेल्या, पोलिसांनी मी म्हणता पोलिसांनी दिरंगाई केली, जर त्यांनी केली नसती तर श्रद्धा जिवंत, तर पोलिसांकडे तुम्ही कधी केलेला आणि त्यांचा रिस्पॉन्स काय होता? मी सर्वप्रथम 23 सप्टेंबरला गेलो होतो 2022. त्यानंतर कंप्लेंट माझी 3 ऑक्टोबरला घेण्यात आली. सर, जब आप एक दूसरों की जरा प्लीज सामने भी आने दो जरा, आप वापस बाद में आना.
आणि तो संपर्क का होऊ शकला नाही, काय ऑब्स्टॅकल्स होते, कुठल्या मार्गाने तुम्ही तिच्याशी संवाद साधण्याचा, संपर्क करण्याचा प्रयत्न केला? मी जास्त करून तिच्या मित्रांनाच जास्त विचारले गेले की कुठे आहे, पण मला काही कळू शकले नाही. जी, मैं एक बार गया था, जब कंप्लेंट देने से पहले मैं गया था उनके घर पे, तब उनकी माताजी से बात हुई थी, लेकिन मुझे कुछ जवाब ठीक से नहीं मिला. एक मिनट जरा यहाँ बात नहीं हो जाए. श्रद्धा ने आपको बताया था कि आपका मिस्टर इस तरीके से बिहेव करता है, कितनी बार बताया था कि कितनी बार मारा पीटा था, ऐसा कुछ बताया गया था? क्या वो नशा करता था? नहीं, मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी पहले. सर, आप कह रहे हो कि श्रद्धा के दोस्त लोग आपसे आपकी बात होती थी, लेकिन श्रद्धा के सारे दोस्तों को ये चीज पता थी कि आपका उसको ब्लैकमेल करता था, उसको मारता भी था. तो क्या आपको श्रद्धा के दोस्तों के जरिए भी ये बात पता नहीं चली? और अगर आपको पता भी चली होगी तो क्या आपने उसके बाद भी आपकी लड़की को ढूंढने का प्रयास नहीं किया कि मेरे लड़की के साथ ये सारी चीजें हो रही है? आपको उनके दोस्तों ने कुछ बताया इस बारे में? नहीं, मुझे कभी नहीं बताया गया और मुझे मालूम भी नहीं था कि उसके साथ क्या हो रहा है. विकास जी, पुलिस के सामने अभी एक सबसे बड़ी चीज है सबूत को इकट्ठा करना. जब आप सितंबर में गए थे कंप्लेन करने के लिए, उस वक्त पुलिस ने शुरुआती तौर पर आप लोगों से भी पूछताछ की होगी, आपके परिवार को भी बुलाया गया था, वहाँ भी गई थी उनके घर में? जी, बुलाया गया. सवाल ये है कि क्या जो पुलिस स्टेशन में पहले की कंप्लेन थी 2020 वाली, उस कंप्लेन को लेकर कोई आपको जानकारी थी या पुलिस ने आपको वहाँ से कोई जानकारी मंगाकर बताई कि आपकी बेटी की पहले कोई कंप्लेन हुई है क्या? क्योंकि ये मामला फिर 23 सितंबर को भी खुल सकता था. जी, बराबर, लेकिन मुझे इसके बारे में कुछ जानकारी नहीं थी पहले, जो श्रद्धा ने 2019 में कंप्लेंट की थी. ये नेग्लिजेंस मानते हैं वैसे मणिपुर पुलिस? जी हाँ, जरूर. आपकी आखिरी बार श्रद्धा से कब बात हुई और वो क्या? 2021 में हुई थी. तब आप बताएंगे थोड़ा डिटेल उसके बारे में? डिटेल ज़्यादा कुछ नहीं पूछा था मैंने, बस तुम कैसी हो, क्या कर रही हो और कहाँ रहती हो. तो उसने 2021 में कब बात हुई? वो एग्जैक्ट डेट नहीं बता सकता, लेकिन मिड में हुई थी. सर, क्या जवाब क्या दिया था आपके सवाल के जवाब? बस वो बोली कि मैं ठीक हूँ और मैं बेंगलोर में रहती हूँ और आप कैसे हो, उसका भाई कैसा है, यही सिर्फ पूछा उसने. श्रद्धा के अलावा कभी आपसे आपकी बात हुई थी? आप जब शिकायत करने गए थे या शिकायत करने के बाद आपने कोशिश की आपसे बात करने की कभी? जी, के अलावा श्रद्धा के अलावा जी जी, उससे एक बार बात हुई थी 26 सितंबर को. तब मैंने यही पूछा था कि मेरी बेटी कहाँ है, तुम्हारे साथ 2.5-3 साल से है, तो मुझे बताना चाहिए था अगर वो कहाँ छोड़ के गई है, तो वो क्यों नहीं बताया. तो उसने कहा कि मुझे मालूम नहीं है वो कहाँ छोड़ के गई है. तब मैंने उसको पूछा कि ये तो तुम्हारी जिम्मेदारी थी, अगर 3 साल से उसके तुम्हारे साथ रह रही है तो क्यों नहीं बताया गया. तो उसके ऊपर उसने कुछ जवाब नहीं दिया. पूरे मामले की जांच कर रही है, तो दिल्ली पुलिस ने आपको भी बताया कि आपका कॉपरेट कर रहा है, नहीं कर रहा है, और क्या बता रहा है? मोटिव क्या है, हत्या क्यों की? उसने आगे इतने समय से रह रहा था दिल्ली पुलिस एज ए पेरेंट्स क्या आपको क्या वजह पता किया दिल्ली पुलिस? आपको व्यक्तिगत जानकारी पुलिस से कोई जानकारी? भैया जरा दूसरों को पूछने देना. दिल्ली पुलिस की जांच में अब तक क्या सामने आया है? एज ए पेरेंट्स आपने इन्फॉर्मेशन ली होगी पुलिस से, पुलिस ने क्या बताया है, क्यों कैसे किया गया श्रद्धा को? नहीं, वो मुझे कुछ बताया नहीं अभी तक, क्योंकि उन्होंने बताया है कि ये चार्जशीट बनने तक हम लोग ज़्यादा शेयर नहीं कर पाएंगे, तो आपको जब चार्जशीट मिलेगी तब आपके सामने सब कुछ आ जाएगा. एक सेकंड जरा वो बैजल बताया उन्होंने नाम. एक्चुअली वो फॉर्मर गवर्नर थे, अभी के जो गवर्नर है लेफ्टिनेंट गवर्नर BK सक्सेना,
उनसे उनकी मुलाकात हुई। अब इस तक से ना दी तो ने भी मुलाकात की। अभी हाँ जी 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 सर जी, क्या आप चाहोगे कि रूलिंग पुलिस ऑफिशियल जिनके अकॉर्डिंग टू यू जिनसे डिले हुआ उनके अगेंस्ट एक्शन लेना चाहिए, आप गृह मंत्री से भी मिले, आप चाहोगे कि कुछ एक्शन उनके अगेंस्ट भी लेने चाहिए? क्योंकि आपने बोला कि अगर उन्होंने एक्शन लिया होता तो आपकी बेटी अभी जिंदा है। आप चाहोगे उस बारे में, क्या आपको क्या लगता है? नहीं, मुझे वही तो लग रहा है कि ये अगर उस वक्त अगर ज़्यादा एक्शन लिया होता तो आज जरूर वो जिंदा होती। आप चाहोगे एक्शन लिया जाना चाहिए? मुझे जानकारी नहीं दी गई, तो ये तो उनका काम था मुझे जानकारी देनी। आप चाहते हैं कि उन पुलिस वालों के खिलाफ जांच होनी चाहिए, उन्होंने एक्शन क्यों नहीं लिया? गृह मंत्री से हमने बात की, देवेंद्र फडणवीस अपनी नाही, कारवाई बद्दल मी सांगू शकत नाही, पण याची चौकशी व्हायला हवी। श्रद्धा ज्यावेळेला सगळ्या शेवटी घर सोडून गेली त्यावेळेला तुमचा वाद झाला होता, भांडण झालं होतं की नुसता संवाद झाला होता, नेमकं काय झालं? नुसता संवाद झाला होता आमचा आणि मी तिला फक्त एवढंच सांगितलं होतं की हे आपल्या कम्युनिटीमध्ये नसल्यामुळे माझा याला विरोध आहे, तर तू विचार कर। त्यावर तिने उत्तर दिलं की नाही, मला त्याच्याबरोबरच राहायचं आहे। तर त्यानंतर ती मग घर सोडून गेली। नाही, सध्या तरी पोलिसांची कारवाई व्यवस्थितपणे चालू आहे। दिल्ली पोलिसांनी बरेच सहकार्य केलं याबद्दल माझ्या चौकशीसाठी। सर, आप फडणवीस जी से मिले, क्या उनसे बात हुई, क्या कहा आपने? जी जी, उन्होंने आश्वासन दिया है कि मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको न्याय दिलाने के लिए। सर, एक सवाल मुझे मराठवाड़ा हिंदी में पूछूंगा कि जब आपकी आखिरी बात हुई थी श्रद्धा से, तो वो घर छोड़ के जा रही थी, क्या एग्जैक्टली बातचीत हुई थी? क्या आपका आर्ग्यूमेंट हुआ था या फिर से बात हुई थी? और क्या इस रिश्ते को आपका सपोर्ट था या आप अपोज करते? नहीं, उससे ज़्यादा मेरी बेटी को उसने प्रिपेयर करके रखा था कि यहाँ रहना ही नहीं अभी, तो उस वजह से वो ज़्यादा मुझसे बात न करके ही वो छोड़ के चली गई। लेकिन आपका रिश्ते को सपोज था, आप अगेंस्ट थे इस रिश्ते? जी जी। विकास जी, एक अहम सवाल ये है कि वो लिविंग में कई साल से थे, कभी उसे मारा पीटा किया करता था, तो आपको वो जानकारी थी, उसके बावजूद आप पुलिस स्टेशन उसके पहले गए थे शिकायत करने की मेरी बेटी के साथ? नहीं, मुझे जानकारी नहीं थी कि उसको मारपीट कर रहा था, ये मुझे बाद में पता चल रहा है। जब पुलिस स्टेशन में शिकायत दी गई थी श्रद्धा की तरफ से कि उसे मारा गया, प्रताड़ित किया गया, उसकी जानकारी आपको नहीं थी? बिल्कुल नहीं। क्या ऐसी वजह कुछ आपको पता है कि जिस वजह से मारपीट होने के बावजूद इतना 2 साल तक उसके साथ रहने के लिए मजबूर क्यों थी? कुछ आपको इसके बारे में पता चला जानकारी? नहीं नहीं, मुझे कुछ भी जानकारी नहीं थी उसके बारे में। आपको लगता है कि आफ्ताब के पेरेंट्स ने अपनी बेटी की गलतियां छुपाई है मौत के बाद? क्योंकि जब पहली बार पूछताछ के लिए बुलाया गया था तो आफ्ताब ने अपने पेरेंट्स को भी कुछ जानकारी दी, क्योंकि उस बुलाए जाने के बाद से ही वो लोग वसई की यूनिक पार्क बिल्डिंग को छोड़कर कहीं और शिफ्ट हो गए थे, कुछ दिन तक किसी के संपर्क में भी नहीं थे। तो क्या वो अपने बेटे की जो उनका कारनामा था उसको जान गए थे, इस वजह से खुद से चले गए थे? मुझे तो ऐसे ही लग रहा है कि उसकी हर हरकत को वो जानते थे। सवाल आपसे ये है कि श्रद्धा ने अपने दोस्तों के साथ सब मैसेजेस साझा किए थे, अपने जो फॉर्मर बॉस थे उनके साथ उन्होंने एक फोटो भी साझा किया था किस प्रकार से आफ्ताब उनको मारपीट कर रहा है, तो वो अपने दोस्तों के साथ बोलते थी, तो ऐसा क्या था कि वो अपने पेरेंट्स के पास वापस नहीं आ रही थी या उनसे बात नहीं कर रही थी, मारपीट हो या फिर उसके ऊपर जो अत्याचार हो रहे थे उसके ऊपर? शायद उसको ऐसा उसके कहने पर जो लेटर लिखा है पुलिस स्टेशन में, नालासोपारा पुलिस स्टेशन में, कि उसको ब्लैकमेल किया जा रहा है, तो वही कारण हो सकता है। लेकिन अगर आपसे क्यों नहीं वो साझा करती? मुझे वो पता नहीं। बाळगू साहेब, आभासी जगाच्या तिच्या जीवनावरती काही परिणाम झाला होता असं तुम्हाला वाटतंय का? परत विचार। आभासी जगाचा, आभासी म्हणजे सोशल मीडियाचा नाही, मोबाईल ॲपवर हां, त्याचं असं आहे की आता जे काही म्हणजे मॉडर्न जे ॲपवर जे डेटिंग ॲप जे म्हणतात त्याद्वारे जे मैत्री होते, तर
ते थोडासा त्याचा विचार व्हायला पाहिजे, कारण हे कंट्रोल होत नाही, पेरेंट्स पण त्याला हेल्पलेस असतात, तर ह्याचा विचार करायला हवा. काय कंट्रोल व्हायला पाहिजे? व्हॉट इज द कंट्रोल? आपको क्या कंट्रोल? नहीं, मैं उसके बारे में नहीं बता सकता. सर, इस रिश्ते से आपको प्रॉब्लम क्या था? आफ्ताब के साथ श्रद्धा डाकू का प्रॉब्लम क्या मुस्लिम था, ये प्रॉब्लम थी, या आपको पहले से ही आफ्ताब का डाउट था? क्या प्रॉब्लम क्या था? नहीं, मैं तो पहले से ही अगेंस्ट था इसके लिए, तो इसके लिए मैं वो कौन था इसके बारे में नहीं बता सकता. सर, तुम्ही आज फडणवीसांची भेट घेतलेली आहे, आणखी कोणाची भेट घेणार आहात का? केंद्रातील किंवा आणखी कोणाची भेट घेणार आहात? सध्या तरी तसं काही विचार केला नाही, पुढे बघू. सर, आप डेटिंग ऐप पे बार बार कह रहे हैं कि डेटिंग ऐप के ऊपर कोई कंट्रोल होना चाहिए, इसकी वजह क्या है? क्या श्रद्धा भी डेटिंग ऐप के जरिए मिली थी आफ्ताब से? क्या इसकी वजह क्या आप कह रहे हैं कि उसके ऊपर कंट्रोल होना चाहिए? शुरू में वही हुआ था, जो डेटिंग ऐप के वजह से ही मेरी बेटी का उसके साथ फ्रेंडशिप हुआ था, तो उसके ऊपर सोच विचार होनी चाहिए. सर, तुम्ही म्हणताय की तुम्हाला कधी श्रद्धाने फार काही सांगितलं नाही, पण घरच्या दुसऱ्या कोणाबरोबर ती ओपन अप झाली होती का? जशी मित्रमैत्रिणींना ती सांगायची तसं घरच्या दुसऱ्या कोणाशी ती बोलायची? नाही, जास्त काही बोलायची नाही आवड. सर, श्रद्धा होती ती आईसोबत राहत होती, तर आई आणि तुम्ही डिवाइड झालं होतं, त्यामुळे तुमच्याशी तिचा संवाद साहजिकच कमी होता, तर तुमचा तिच्यावरती कंट्रोल कशामुळे नव्हता? पहिला मुद्दा म्हणजे आम्ही डिवाइड झालेलोच नव्हतो, आम्ही फक्त ॲडजस्टमेंट करत होतो. माझी आई 84 वर्षाची असल्यामुळे मला तिलाही बघायचं होतं, त्याकरता आम्ही फक्त वेगळे राहतो, इतकेच. ती आईसोबत काही मनातल्या गोष्टी तिने शेअर केल्या होत्या का? तुमचं जेव्हा तुमच्या पत्नीशी गेल्या वर्षी संवाद झाला तेव्हा तिने सांगितलं होतं की श्रद्धाला त्रास आहे म्हणून? कदाचित केले असतील, पण ती नाही, मला काही शेअर केलं नाही काहीच. थैंक यू सर. मैं अपना आभार मानता हूँ. मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि पहली बार वो मीडिया के सामने इट विल टेक सम टाइम टू ओपन. प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड. एंड आपने भी काफी कोऑपरेट किया है. ही इज ट्राइंग. दिल्ली गवर्नमेंट, दिल्ली लेफ्टिनेंट गवर्नर, महाराष्ट्र में डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हु इज ऑल्सो होम इंचार्ज, तो बोथ द गवर्नमेंट हैव एश्योर्ड, उनको कहा है कि भाई हम पूरा इन्वेस्टिगेशन करेंगे. धीरे धीरे आपके मन में अनेक प्रश्न है. मेरी विनती इतनी है कि टुडे लेट अस स्टॉप हियर. नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में आप बाकी. ओके, थैंक यू वेरी मच. यू वांट टू स्पीक? एक मिनट यू वांट टू एक कुछ ऐड करना चाहते हैं? एक मिनट. दादा, एक मिनट. मुझे अभी इस मामले में कोर्ट के लिए मुझे सरकार की तरफ से वकील अपॉइंट किया जाने वाला है, उसकी जानकारी दी गई है. लेकिन फिर भी मेरी तरफ से एडवोकेट सीमा कुशवाहा दिल्ली से है, उनको भी मैं अपॉइंट कर रहा हूं. सीमा कुशवाहा. ओके, थैंक यू वेरी मच. ओनली वन रिक्वेस्ट. अभी सीधे वो घर जाने वाले हैं. नो 1-to-1 टू एनीबडी. करेक्ट ना? प्लीज प्लीज प्लीज.